हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ जो लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पता होगा फरवरी 28 2025 को यूएसए में ओवल ऑफिस वाइट हाउस में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन प्रेजेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो मैं उसका एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। आई एम श्योर आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, फॉलो भी कर रहे हो, बिकॉज एनीवे जब आप अभी एसएसबी इंटरव्यू जाओगे, दिस विल बी वन ऑफ द डोमिनेंट क्वेश्चंस एंड वो आपके जीडी में भी आएगा, आपके इंटरव्यू में भी आएगा, एंड मे बी इफ यूर करंट अपना लेक्चरेट के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी काम आएगा। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द ओवल ऑफिस ऑन 28 February 2025, last Friday, right? So watch the video. He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a Mr. good position. I You was- don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to respect to you, you. far more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn we- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If West? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, It's yes. going to be a very hard thing to do business like this. I'll tell you. Just say thank you. I said a lot of except times that there, thank you except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. सो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, क्लियरली आपको पता है कि इस वीडियो में ये दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में इन प्रेजेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द मीडिया व्हाट हैपेंड वाज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट।
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे, और क्यों मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, मैं इसको करंट अफेयर्स के लेवल पे नहीं बात करूँगा, मैं इसको आपके अपने एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दोनों के बीच में जो भी हमने वीडियो में देखा और बुरा हुआ और इसका असर हो रहा है, और आपने ये भी देखा कि ये सब लोग अलग अलग तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको पता है ज़ेलेंस्की लेटर लिख के अपोलोजाइज कर रहा है. इमीडिएटली उसी दिन फ्राइडे को 28 को ही वेंट टू यूके एंड दे हैड अ मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, एंड ट्रंप इसको अलग तरीके से देख रहा है. ट्रंप ने बोल दिया कि भैया एनीबडी हु डज नॉट वांट अ सीज फायर विल नॉट एग्जिस्ट, है ना, वो अलग ही लेवल पे जा रहा है. एंड ही सेज कि भैया मिनरल डील साइन करना तो साइन करो, वरना ज़ेलेंस्की बोलता नो हमें सिक्योरिटी चाहिए, है ना, सिक्योरिटी गारंटी चाहिए. सो देयर आर इंटरेस्ट का क्लैश है. सो ज़ेलेंस्की इसको अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, ट्रंप इसको अपनी तरीके से कर रहा है. पुतिन को अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि पुतिन को तो मज़ा आ गया भैया ये क्या हो गया जो भी हो, और नाटो में आग लग गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने देखा भैया हम तो, यूरोपियन यूनियन की पूरी ताकत इसलिए है क्योंकि उसके पीछे यूएस से खड़ा हुआ, और अचानक वो लोग एक्सपोज हो गए क्योंकि उनका स्टैंड और ट्रंप का स्टैंड बिल्कुल अलग. पुराने प्रेसिडेंट का स्टैंड अलग था, ट्रंप ने एकदम अलग ही ले लिया, एंड उसके कारण नाटो एक्सपोज हो गया. नाटो की वल्नरेबिलिटी, मतलब नाटो का इतना कमज़ोर हालत कभी नहीं हुआ था. यूक्रेन की लड़ाई का शुरुआत इसलिए हुआ था बिकॉज यूक्रेन वांटेड टू जॉइन द नेटो, और अभी हालत ये हो गई कि नाटो खुद ही बुरा हाल में फंस गया. इनफैक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन एब्सेंस ऑफ यूएस. यूरोप को अपना प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा. यूरोपियन यूनियन को बोल दिया ट्रंप ने कि यूरोपियन यूनियन बना ही इसलिए था टू स्क्रू यूएस से. तो बड़ा एक बहुत ही एक जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम में चल रहा है. पूरे दुनिया में हड़कम मच गया. इनफैक्ट द एंटायर मीडिया इज कवरिंग इट सिंस लास्ट फ्राइडे, है ना, 28 से देखे आप देखोगे पूरा ये भरा हुआ है. एंड आई एम श्योर आप लोग इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज अभी आप जब एसएसबी जाओगे दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक दैट will be in GD में हो या interview में हो, this will be a major thing, and since it's got a serious implication on the world across and also India and its geopolitics, it comes with a lot of causes and consequences. इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी आएगा, प्लस इंडिया के लिए नए चैलेंजेस भी आएगा. एनीवे देयर इज अ ट्रेड वॉर गोइंग ऑन, टैरिफ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, यूएस इंडिया, यूएस कनाडा, यूएस मैक्सिको, मतलब दुनिया इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन. तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टाइम. जियोपॉलिटिक्स में इतना उथल पुथल जो है शायद आई डोंट नो, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त उथल पुथल चल रहा है. सो यू मस्ट फॉलो इट. एंड यहाँ पे इस वीडियो में विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दी करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ इट, विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, है ना. सो हमारा टॉपिक जो है करंट अफेयर्स के ऊपर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है. सो जब आप एसएसबी जाते हो तो आपने भी देखा होगा यू आर ऑल्सो एक्सपोज टू कॉन्फ्लिक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एंड वी वांट यू टू हैंडल दिस कॉन्फ्लिक्ट. जैसे ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कैंडिडेट आपको ये स्टिमुलस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम. तो जिस तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका भी एक मूल कारण है. मूल कारण क्या है कि सीज फायर के लिए ज़ेलेंस्की बोलता है कि हमें सिक्योरिटी गारंटी दो, यूएस को अपना ट्रूप्स लाओ. ट्रंप बोलता नहीं हम ट्रूप्स नहीं देंगे, हमको आप मिलिट्री डील साइन करके दो, हम अपने वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स आएंगे, जो भी हमारे माइनिंग वाले आएंगे वो लोग वहाँ रहेंगे, तो उनका नेचुरली वो एक इनबिल्ट आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा. उसके ऊपर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो तो उनका कॉन्फ्लिक्ट है. यहाँ पे कैंडिडेट से पूछा जाता है कि इस पिक्चर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, वॉट लेड टू दिस सिचुएशन. तो ये कारण आपने अपने अंदर से अपने जीवन के अनुभव की समझ और आपके इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी के थ्रू आपको इसको बताना है कि क्या हुआ, राइट. एंड देन उस प्रोसेस को जो भी अंदर हुआ उसको आप कागज में लिख के देते हो. सेम चीज़ आपने देखा होगा WAT में भी वर्ड ही आया था कॉन्फ्लिक्ट. तो आपसे पूछा जाता कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आपके क्या रेस्पॉन्स है. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, किस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को इन टर्म्स ऑफ ए सेंटेंस आप कैसे लिखते हो, है ना. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. और आपको ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स चाहिए, तो ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स के लिए ट्रंप का कॉन्फ्लिक्ट है, यू हैव टू ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड इसका कॉज क्या. पिक्चर में TAT का देयर ऑल्सो यू टू ऑब्जर्व. सो वॉट एवर आप जरा यहाँ पे लिख के बताना कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप किस तरह से ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्सेज लिखते हो. एनीवे विल बी डिस्कसिंग इट इन दी सब्सिक्वेंट क्लासेस. तो और इसी तरह से SRT में भी देते हैं. सिचुएशन में मिस्टर X found that his boss was involved in anti-organizational activities, so he will. So there is a conflict. Boss
गलत काम कर रहा है, अब आपके मन में द्वंद्व आ रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। जो एसआरटी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करते हो। सेम चीज़ आप इंटरव्यू में भी होता है, इंटरव्यू में आपने कुछ बोला, इंटरव्यू ऑफिसर आपको काट देगा, प्रोबिंग क्वेश्चन में आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल देगा। जीटीओ में भी होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप जीडी में कुछ बोलते हो, अगला बंदा आपकी सुन ही नहीं रहा, वो अपना ही चला रहा है। पीजीटी में आपको फट्टा ही नहीं दे रहा, सो आप कोई आइडिया दे रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। सो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। तो उसी तरीके से जिस तरह से ट्रंप और उसके बीच में हो रहा है, इसका कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन टू कम आउट विद सोल्यूशन। तो जैसे आपको पता है YLC में, YLC इज़ यंग लीडरशिप कोर्स जो OTA में होता है, उसमें देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कि अलग अलग चीज़ें जो करा रहे हैं उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू योर ओन स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, है ना। इसमें देखो क्या क्या मेंटल रोबस्टनेस, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप ट्रेट, कैरेक्टर बिल्डिंग, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, लर्निंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, एंड डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। सो आज हम इसी चीज़ में बात करेंगे ना। जो लोग YLC के लिए जा रहे हैं, ACC 132 वाले ना, आपको पता है YLC में भी एक देयर इज एंट्रेंस टेस्ट, है ना, जिसमें OAR भी होता है और एक PPDT फॉर्मेट में होता है। जो लोग YLC जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर कवरिंग ए कंप्लीट सेपरेट मॉड्यूल फॉर देम। सो जो लोग उसमें जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी किस तरह से करना, ताकि आप वहाँ पे जाके YLC के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लो, तो आपको 4-5 महीने मिल जाता है। दैट्स अ गुड टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, प्रोवाइडेड यू नो किस चीज़ पे काम करना है। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं अपना नंबर आगे शेयर कर दूँगा। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। नाउ इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन में AFOSP का कॉम्पोजिट बैच कंसिस्टिंग ऑफ बोथ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड दी SSB इज़ अवेलेबल। 1 मंथ ड्यूरेशन का है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 9090099035। जो लोग YLC जा रहे हैं ACC 132 वाले, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स। तो ये 1 मंथ ड्यूरेशन का है। इसका टाइमिंग मॉर्निंग में जब भी क्लास होता है तो वो 6:30 से शुरू होता है, और इवनिंग का क्लास जो है 8:45 से होता है, व्हेन एवर इट इज शेड्यूल। तो उसका डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। सो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो वी मस्ट नो द कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, द इम्पैक्ट और द implications of that or the consequences of that, and how to manage it. Conflict resolution skills. So that's a topic that we're going to talk today. Now, what is a conflict? सबसे पहले तो ये देखते हैं what is a conflict. A conflict is a situation in which two or more parties, in this case, President Zelensky and United States का president जो है, a conflict is a situation in which two or more parties have incompatible goals. इनकम्पैटिबल गोल्स क्यों है? क्योंकि ज़ेलेंस्की बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी गारंटी। ट्रंप बोलता है मैं वो नहीं दे सकता, तुम मिलियन डील साइन करो। सो इनकम्पैटिबल गोल, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो रहे, तो वो उसने साइन करने से मना कर दिया। हैव इनकम्पैटिबल गोल नीड्स, दोनों के नीड्स अलग अलग है, और वैल्यूज़, है ना, दोनों के वैल्यू सिस्टम अलग अलग है, लीडिंग टू अ क्लैश और ऑपोजिशन। सो ये एक इसका कॉज है। तो ठीक इसी तरह से जब TAT का पिक्चर दिया जाएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाइड वो कॉज क्या है उस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। सो व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट? सो वी सॉ नाउ इसी का कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज इन वेरियस कॉन्टेक्ट। इट कैन बी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, it can be social conflict, it can be organizational conflict, it can be international setting. In this case, it is a conflict between two countries एंड देयर उनका दोनों का प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट का पर्सनालिटी बीच में आ रहा है। इसी जगह ट्रंप की जगह में बाइडन होता तो बाइडन तो उसको 350 बिलियन का सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन ट्रंप आया तो उसके पर्सनालिटी चेंज, तो उसके ऑप्शंस चेंज, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यही जेलेंस्की को पहले हीरो की तरह ट्रीट करते थे, अब सडनली इसको जीरो बना दिया। सो कैन यू सी दैट, राइट। सो आपने देखा यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, जेलेंस्की सेम है, लेकिन दोनों का डील करने का तरीका अलग। बाइडन के केस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बिकॉज वहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट अलाइन हो रहा था। बाइडन रशिया को पीटने के चक्कर में लगा था और उसने मोहरा बना लिया जेलेंस्की को। सो पैसे दिए जा रहा है, हथियार दिए जा रहा है, पूरा यूरोप खुश और सब में। जैसे ट्रंप आया उसने बोला नो, ये तो फालतू बकवास है, ये क्या कर रहा हो,
और बाइडेन एक ट्रांजैक्शन में चला गया, बोला इतना 350 बिलियन दिया हुआ है, तो प्लीज़ साइन द मिनरल डील ताकि हम उसको रिकवर करें। लेकिन जेलेंस्की बोलता नो, वो एग्रेसर है, आपने पूरा वीडियो देखा ही है, वो एग्रेसर है, हम कैसे हथियार डाल दें, हम कैसे दे दें, हमको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, पुतिन को पीछे हटना पड़ेगा, वो अपने ही चल रहा है। सो पर्सनालिटी चेंज, तो अप्रोच चेंज, और उसके चक्कर में आपको देखो पूरा यूरोपियन यूनियन अभी ट्रम्प के अगेंस्ट में हो गया, यूएसए के अगेंस्ट में क्या हो गया, अगेंस्ट में जा नहीं सकता, वो बोलते हैं हम करेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हमें यूएसए का सपोर्ट चाहिए। तो उन्हें भी पता है कि यूएसए के सपोर्ट के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बोलना तो है ना, क्योंकि उनका स्टैंड नहीं तो पूरा गड़बड़ हो गया। तो कुल मिला के जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा टर्बुलेंट टाइम जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में शायद अभी आया होगा, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन ही, पूरा यूरोप ही अभी हिलना शुरू हो गया, उनकी जड़ें हिला दिया है। राइट नाउ देखो ये पिक्चर देखा होगा, 28 का ही था, उसी दिन जाके जेलेंस्की साहब चले गए यूके में और सारे लीडर्स वहाँ मिले, वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो भी आ गया, कनाडा वाला, तो जस्टिन ट्रूडो को भी लपेट दिया, भैया तुम कहाँ यूरोप में जाके खड़े हो गए, पता है ना यहाँ पे खड़ा है, देखो ये पीछे इधर बीच में खड़ा हुआ है कोट पहन के। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू फॉलो इट एंड अंडरस्टैंड करके कि ये क्या हो रहा है, कैसे हाउ थिंग्स आर अफेक्टिंग। सो पूरा यूरोपियन यूनियन एक साइड और ट्रम्प एक साइड हो गया, और अभी ये एक्सपोज हो गया, भैया अभी ये बोला है तो पंगा हो गया, है ना। सो there are different types of conflict. फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में, इंट्रापर्सनल मतलब मेरे ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, एसएसबी वालों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कि मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, क्या मैं इसे इम्प्रूव करूं या ऐसे ही चले जाऊं, है ना। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करूं या कोचिंग के नोट्स रट लूं, ये सब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। देन ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ग्रुप मतलब दो समुदाय के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कल्चर के कारण, मेरा कल्चर तुम्हारा कल्चर अलग है तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। सो द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मेनी, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट, राइट। नेक्स्ट इज कॉजेस क्या है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, जैसे इनके केस में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली हुआ, डिफरिंग वैल्यूज एंड गोल्स ये भी इनके केस में हुआ, पावर इम्बैलेंस, जेलेंस्की ना डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बोल ही दिया यू डोंट हैव कार्ड्स, जेलेंस्की बोलता है आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड, भैया बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, आप साले जिस हाथ से खिला रहे हैं आप उसी हाथ को काट रहे हो, तो पावर इम्बैलेंस। एंड ट्रम्प तो टोटल पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से बोल रहा है। पर्सनालिटी क्लैशेस डेफिनेटली यहाँ पे, यहीं पे अगर बाइडन होता तो ये होता ही नहीं। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, वड़ावा, है ना। तो इसी तरीके से इस पिक्चर को भी जब आप देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए एज पार्ट ऑफ द व्हाट लेड टू द सिचुएशन कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कॉज क्या है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और तभी तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे ना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बाइडन और उसका देखा कि आप भी इस कॉन्फ्लिक्ट को टीएटी में जब रिजॉल्व करते हो, डब्ल्यूएटी में, जीटीओ में, इंटरव्यू में जब करते हो, तो आपका एक हाई डिग्री ऑफ रीजनिंग अगर नहीं होगा तो आप इसे कर नहीं पाओगे। तो इसे एक रट्टे से, रोट मेमोरी से इसे नहीं कर पाओगे। यू नीड टू बिल्ड अप दी कैपेबिलिटी टू think in those situation. Effective intelligence is practical problem solving. So इस पिक्चर में जो दिख रहा है, definitely there is a problem. This is a interpersonal conflict. This is a interpersonal, क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का कॉज क्या है, इसको डील करना तो कैसे डील करना है। जब तक वो समझ नहीं आएगी आप उसको कर नहीं पाओगे, है ना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, व्यवस्थित करने की, एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज आप जो भी सोचोगे उसको आपको कागज पे लिखना है, तभी तो साइक को पता चलेगा। नेक्स्ट इज इसमें देखो सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने हिस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अगेन यू कैन नॉट प्रोसीड विद द कॉन्फ्लिक्ट ना। अगर आपके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप लड़ते रहोगे या आप अनफेयर कंपटीशन में चले जाओगे, आप उठपटांग काम करोगे, है ना। सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, ये सब निकल के आएगा। इनिशिएटिव, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव दें। आत्मविश्वास, क्या आपके पास वो आत्मविश्वास है जिसके बशर्ते आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो कार्रवाई करना वो कर पाओगे, है ना। डिसीजन, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ट्रम्प, जेलेंस्की, देखो ट्रम्प इज स्पीकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर, तो जेलेंस्की को वो फोर्स कर सकता है। लेकिन अगर दोनों बराबर के हैं, देखो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखो, दोनों साइड गिव अप करने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, वो तो इनफैक्ट चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ही ना हो।
तो ये है ना लाइवलीनेस एंड ऑल दोस थिंग, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना। सो आप जिस तरीके से इसको डील करते हो उससे आपके सारे एट्रीब्यूट जो है आपको बाहर निकल के साइक को पता चल जाएगा। सो इस स्किल को डेवलप करने में ही फायदा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल के ऊपर थोड़ा और बातें, राइट। सो वेदर इट इज एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रंप एंड बाइडन या पाकिस्तान एंड इंडिया और TAT का पिक्चर, द अप्रोच टू दैट इज सेम। कॉन्फ्लिक्ट के कॉज को आइडेंटिफाई करो, उसके कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको डील करो एंड डील करके उसको फाइनल एक आउटकम तक पहुंचाओ। तो इस पिक्चर में इसका फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए कि इन दोनों में सुलह हो जाना चाहिए। इसका आउटकम क्या होना चाहिए कि भैया यूक्रेन और रशिया और यूरोपियन यूनियन और ट्रंप का एक ऐसा वो जिसको सबको म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो। बट यहाँ पे ट्रंप जो है कैन पुश इट, वाई? बिकॉज ही इज इन अ पोजिशन ऑफ पावर एंड उसको कुछ नुकसान नहीं होना। यूरोपियन यूनियन, ट्रंप, ये सब फंसे हुए हैं, अपना जेलेंस्की फंसा हुआ है, लेकिन ट्रंप कैन एक्चुअली पुश इट। सो दैट्स इट। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल को समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सो कैंडिडेट का भी हम देखना चाहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज दिस कॉन्फ्लिक्ट। आप मिलिट्री सिचुएशन में भी आप देख सकते हो कितने बार आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाएगा। इनफैक्ट फौज में तो ऑपरेशन में हर दूसरे सेकंड में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आप JNK में ऑपरेट कर रहे हो, 2 टेररिस्ट एक घर में है, उन्होंने 3 लोगों को हॉस्टेज बना रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज, कॉन्फ्लिक्ट इज, क्या मैं रॉकेट लॉन्चर लगा के पूरे घर को तबाह कर दूं या फिजिकली अंदर घुसूं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने पूरा वो रॉकेट मार दिया तो ना सिर्फ टेररिस्ट मरेंगे, हॉस्टेज भी हो जाएगा, फिर ह्यूमन राइट वाले चिल्लाएंगे, लेकिन अंदर चला गया तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो कॉन्फ्लिक्ट है ना। विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, मैं ये दिल मांगे मोर बोल के पहाड़ पे चढ़ जाऊं और अपनी मौत को बुला लूं या नीचे से ही फायर करूं। सो ही चोज टू गो अप, है ना। सो इट इज अ कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। आपका करंट अफेयर्स को करूं या ऐसे ही चला जाऊं, रिपीटर हो गए हो, कोचिंग सेंटर्स बदलूं या अपने आप को बदलूं, कॉन्फ्लिक्ट है ना। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड रेस्पेक्टफुल मैनर। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक डिसरेस्पेक्टफुल मैनर में चला गया था एंड एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें भी जिस तरह से इनका चल रहा है डेफिनेटली ये भी कंस्ट्रक्टिव तो नहीं है, लेकिन इसको बिल्ड तो करना पड़ेगा, राइट। नाउ conflict resolution skill involved understanding the root cause of the conflict. This is what led to the situation निकालने के लिए। So इस conflict का root cause क्या है? अगर ट्रंप और उसका देखना है तो ट्रंप का रिक्वायरमेंट है आप भैया रेयर अर्थ का डील साइन करो और फालतू बात मत करो। और जेलेंस्की बोलता मैं ये साइन करूंगा लेकिन मुझे सिक्योरिटी गारंटी दो आप US के। तो ये रूट कॉज हो गया, लेकिन इसके पीछे पीछे आप जा सकते हो, है ना। रिमेनिंग काम एंड कंपोज अंडर प्रेशर। अगर आप ट्रंप को देखोगे काफ़ी टाइम तक ट्रंप चुपचाप बैठा रहा, वो JD वैंस और ये लड़ रहे थे और ये भड़का कब, जब 2 चीज़ों में भड़का। जब इसने पहले तो बोला कि USA विल ऑल्सो फील द प्रेशर, आपके बीच में भी ओशन है, लेकिन आपके जैसे उसने बोला वो भड़क गया ट्रंप और बोला भैया तो हमें मत बताओ, हम कर लेंगे, यू डोंट हैव कार्ड्स टू टॉक ऑल दीज थिंग्स, है ना। दूसरा बार भड़का जब जेलेंस्की ने बोला JD को कि डोंट रेज योर वॉइस, तो उसने ट्रंप ने बोला नो ही इज़ नॉट रेजिंग द वॉइस, disrespectful and all those stuff जो भी है ना। So remaining calm and composed under pressure and using effective communication skill and problem solving strategy। तो आपको effective communication skill, power of expression and problem solving skills को develop करना। आपने देखा होगा YLC के नोट्स में इसको करना, तो इसको करना है। जब इसको करोगे तो आपका रेस्पॉन्स अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रोसेस पे ध्यान देना है ना। तो इसमें भी आपको कॉज को आइडेंटिफाई करना है। अभी ये दोनों गुस्से में है, ये गुस्सा ठंडा होना है और उसके बाद आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करना है ताकि अपनी बात को बता पाओ एंड देन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो दीज स्किल्स हैव टू बी डेवलप एंड इट कैन बी डेवलप। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में यही तो हम कराते हैं, राइट। आगे देखते हैं। नाउ इसको करने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा जो कि सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में हम उसको करवाते भी हैं। पहला है एक्टिव लिसनिंग स्किल। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करोगे, पैसिव हो जाओगे, तो आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं। इनफैक्ट यू विल लिसन टू आंसर, है ना। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर
देयर इज अ 7 स्टेप्स सीक्वेंस, मेरा अपना वीडियो है, अगर वो देखा नहीं है तो आप उसको देखना या मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा. सो देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप नेट पे मारने से भी मिल जाएगा, उसको डेवलप करना. देन यू मस्ट हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि अगला बंदा अभी किस तरह से सोच रहा है, क्या इमोशन से बात कर रहा है, क्या फीलिंग्स के साथ बात कर रहा है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उसके नीड्स क्या है, उसके मोटिव्स क्या है, उसके इंटेंशन क्या है. एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके अपने ये सब चीज़ें क्या है, एंड देन व्हाट मीन्स टू अडैप्ट टू अचीव द एंड गोल. सो इमोशनल स्किल्स है ना, इसको हम EQ भी बोलते हैं, या इसको इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. देन यू शुड ऑल्सो हैव निगोसिएशन स्किल. निगोसिएशन स्किल मतलब कि भैया चलो तुम भी अपनी बात रखो, मैं भी अपनी बात रखते हैं, विन विन सिचुएशन में कैसे आए, है ना. एंड देन कुछ अदर एसेंशियल स्किल्स में रिमेनिंग काम एंड कंपोज, नॉन डिफेंसिवनेस एंड ओपन माइंडेड. जब तक ये नहीं रहोगे तो आपकी बात को आप आगे रख नहीं पाओगे. नाउ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के 5 स्ट्रैटेजी है. पहला है अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल टुगेदर आइदर बाय इग्नोरिंग इट और साइड स्टेपिंग द इशू. इसको अवॉइड का मतलब है आपको दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट, आप हटा रहे हो. SSB वाले भी करते हैं, मुझे पता है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग ठीक नहीं है, उसके बाद भी मैं काम नहीं करता. दैट्स कॉल्ड अवॉइडेंस, है ना. तो इसके फायदे ये है, कैन बी यूजफुल सिचुएशन द कॉन्फ्लिक्ट इज माइनर और नॉट वर्थ द एफर्ट. बट आप सोचो SSB में अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग नहीं है और आप जाओगे तो ये माइनर प्रॉब्लम मेजर है, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, आपको नुकसान करेगा. और उसका नुकसान क्या है, कैन लीड टू अनरिजॉल्व इश्यूज एंड रिसेंटमेंट, डेफिनेटली, है ना. नेक्स्ट इज एकोमोडेशन स्ट्रैटेजी. एकोमोडेशन स्ट्रैटेजी का मतलब गिविंग टू द अदर पार्टीज डिमांड्स और नीड ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ ओन इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ेलेंस्की अगर बोलते ठीक है मैं साइन करने को तैयार हूँ विदाउट सिक्योरिटी गारंटी, इसका मतलब है वो अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड को छोड़ के ट्रंप जो बोल रहा है वो साइन कर रहा है, उसमें यूरोपियन यूनियन सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप का पत्ता चल जाएगा. दिस इज एकोमोडेशन. तो ये तब करते हैं जब एक पक्ष कमजोर हो, दूसरा पक्ष बड़ा तगड़ा हो. तो यहाँ पे ट्रंप जो है बिल्कुल तगड़ा है और ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शंस नहीं है ना. कैन हेल्प मेंटेन रिलेशनशिप एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. तो ऐसा अगर कर देता है तो इससे ट्रंप और यूएस का रिलेशनशिप, ज़ेलेंस्की और यूएस का रिलेशनशिप थोड़ा बहुत रिस्टोर भी हो जाएगा और ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है वो ख़त्म भी हो जाएगा. बट इससे यूरोपियन यूनियन, यूरोप नाराज हो जाएगा और बहुत सारे लोग, पुतिन खुश हो जाएगा. सो एवरीथिंग कम्स विद इफेक्ट्स, consequences, right? And cons क्या है, can lead to feeling of resentment and exploitation. तो इसका ज़ेलेंस्की को कैसा लगेगा, साला ट्रंप ने मेरे को दादागिरी करके ऐसे कर दिया, उन्होंने मेरा सप्लाई काट दिया, हथियार देना बंद कर दिया, पैसे देना बंद कर दिया, मैं फंस गया. तो वो प्राइवेट में रोएगा लेकिन पब्लिक में जाके साइन कर देगा. ठीक उसी तरीके से आप जब इसको एकोमोडेशन स्ट्रैटेजी से करते हो तो एक पार्टी खुश हो जाएगा, दूसरा पार्टी दुखी हो जाएगा. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन का मतलब एक दूसरे से बढ़ना, यूजिंग असर्टिव एंड एग्रेसिव टैक्टिक्स टू अचीव वंस ओन गोल. सो दोनों अगर अपनी बात को छोड़े ना, जैसे 28 तारीख को हुआ, दोनों भिड़े रहे, ना ट्रंप झुका ना ज़ेलेंस्की रुका, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया. सो कैन बी इफेक्टिव इन अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल. शॉर्ट टर्म में हो सकता है फायदा हो जाए, लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा. कैन डैमेज रिलेशनशिप में लीड टू लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट. अभी देखो इसका सेकंड क्या क्या हो रहा है. ट्रंप अभी इस चक्कर में लगा कैसे ज़ेलेंस्की को ही हटाना है. इसके चक्कर में नाटो का हाल बुरा हो गया, यूरोप का हाल बुरा हो गया. तो हर चीज़ के आपको पॉजिटिव भी देखना आना चाहिए, नेगेटिव भी देखना आना चाहिए. कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी है ना, वर्किंग टुगेदर विद द अदर पार्टी टू फाइंड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन. दिस इज अ विन विन सॉल्यूशन. पिछला वाला था विन लूज सोल्यूशन, एक पार्टी विन करेगा दूसरा लूज करेगा. दिस इज विन विन, दोनों पार्टी. इसमें आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा. प्रोस कैन लीड टू क्रिएटिव सोल्यूशन एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि इसमें बातचीत ज़्यादा होता है, कोलैबोरेशन में बहुत सारा डिस्कशन होता है, एंड रिक्वायर्ड एफर्ट फ्रॉम ऑल पार्टीज. अब देखो इंडो पाकिस्तान में मोदी जी के आने के बाद बोलते कि हम भैया इनसे बात ही नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या है, हमने उसको टोटली पाकिस्तान को अवॉइड ही कर दिया, मतलब छोड़ो, है ना. मोदी जी ने बोला पाकिस्तान खुद ही अपनी मौत मर जाएगा. सो वी आर नॉट इवन एंगेजिंग इन कम्युनिकेशन. सो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ इस लेवल पे चला गया कि पाकिस्तान हमसे बात करना चाहता है, हमने बोला तू ऐश कर. क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट कोलैबोरेट विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अनट्रस्टवर्दी. वो लोग बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हो, पीछे से कुछ भी कर देते हैं. सो कैन यू सी दीज थिंग्स इन रियल लाइफ जियोपॉलिटिक्स में. नाउ वी वांट टू सी कि आप इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से क्या स्किल्स अपने लगाते हो. सो लास्ट इज कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज मतलब एक पक्ष छोड़ देगा. फाइंडिंग ए मिडिल ग्राउंड दैट पार्टी सेटिस्फाई बोथ पार्टीज. इन मिडिल का रास्ता ना, भैया आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ ना. प्रोस कैन बी क्विक एंड इफेक्टिव वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मे नॉट फुल्ली सेटिस्फाई. दोनों पार्टी जो है, क्योंकि दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है
तो दोनों पार्टी को थोड़ा मिलेगा, थोड़ा नहीं मिलेगा, थोड़ा दुखी होंगे, थोड़ा खुश होंगे। तो दीज आर द 5 स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल: अवॉइडेंस, एकोमोडेशन, कंपटीशन, कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। इसका डिटेल्स जो है आप जब एसएमएल में आएंगे हम उसको करेंगे, बिकॉज ये ना सिर्फ ये जियोपॉलिटिक्स के लिए, ये हमारे अपने एसएसबी के प्रिपरेशन में भी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। अगर आप किसी डेल्टा को देख के, अपने अंदर की कमी को देख के उसको अवॉइड करते हो, आप नुकसान कर दोगे। एकोमोडेशन, कंपटीशन, कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइज़ क्या है आप उसको बताना, और मुझे कमेंट लिख के बताना कितने लोगों को ये समझ में आ रहा अभी तक जो मैं यहाँ पे बताया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, ओके, मैं आपको अभी 3 पिक्चर्स दिखाऊंगा और उन तीनों पिक्चर्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो अलग अलग सेटिंग में होगा। आप उन पिक्चर्स को देखने के बाद समझना और उसके ऊपर अपने रेस्पॉन्स लिख के इस यूट्यूब के नीचे या मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आगे भी बता दूंगा। और उसको हम अगले मंडे को, जो लोग अटेंड करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे, FOCP का टेलीग्राम चैनल है, या मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा एंड वी विल हैव ए डिस्कशन ऑन दैट टू सी आपने क्या तरीके से उसके कॉन्फ्लिक्ट के कारण को आइडेंटिफाई किया, कैसे उसको डील किया है और क्या एंड लाए हो, राइट। सो 3 पिक्चर, सो वॉच दिस इज द फर्स्ट पिक्चर। सो दिस इज द फर्स्ट पिक्चर। यू कैन क्लियरली सी ये 2 लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, नाराज हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट अभी सुलझा नहीं है। तो जब ये पिक्चर आप आंखों से अंदर लेते हो तो हम ये देखना चाहते हैं अंदर जाने के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट का आप कॉज कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे डिफाइन करते हो, कैसे उसको सॉल्व करते हो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को यूज़ करके, और कैसे एंड पाते हो। और आप देखोगे कि ये एक पर्सनल सेटिंग में, तो हम देख रहे हैं आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इन पर्सनल सेटिंग, घरेलू सेटिंग में देख रहे हैं, है ना। सो इसके ऊपर लिखना, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर। नाउ सेकंड पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। दिस इज द सेकंड पिक्चर। सो अगेन आपको दिख रहा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई ऑफिस का मीटिंग चल रहा है और उसमें 2 लोगों के बीच में एक टकराव हो गया है ना। अभी मेल कुछ बोल रहा है, उंगली दिखा रहा, फीमेल उसको सुन रही है। सो दिस इज अगेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इसमें हम देख रहे हैं आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इन प्रोफेशनल सेटिंग। पहला वाला पर्सनल था, तो जब ये पिक्चर आंखों से अंदर जाता है तो कॉज जो है वो पहले वाले का घरेलू कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ वाला जो है प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे जो कॉज है वो प्रोफेशनल कॉज होगा, ऑफिस का कॉज होगा। पिछले वाले में यस ऑफिस के कारण भी हो सकता है, लेकिन घर के एनवायरनमेंट में हो रहा था, बैकग्राउंड चेंज हो गया। आपको ये बात समझ में आ रहा है तो कमेंट लिख के बताना। सो दिस इज द सेकेंड पिक्चर। और थर्ड पिक्चर देखते हैं, दिस इज द थर्ड पिक्चर। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि 2 लड़के हैं और वो खुले में लड़ रहे हैं, कहीं ओपन एरिया में लड़ रहे हैं। तो ये दोस्त भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, जो भी होगा वो तो आप बताओगे। एंड दिस इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल हम देख रहे हैं इन सोशल सेटिंग। दोस्त के बीच में हो सकता है, सोसाइटी में 2 लोगों के बीच में हो सकता है, जो भी होगा वो तो आप बताओगे। सो हर केस में हम देख तो रहे हैं आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। इससे आप रट के नहीं कर सकते, इससे आप समझ के ही करना पड़ेगा। आपको यहाँ तक समझ में आया तो मुझे बताना, अगर समझ में आया तो लेट्स मूव फर्दर। तो आपने देखा कि ये तीनों पिक्चर में कॉन्फ्लिक्ट है। अब आपका काम है आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो आपका काम है इन कॉन्फ्लिक्ट के कॉज को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सेटिंग अलग अलग है, पर्सनल सेटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग, सोशल सेटिंग, तो कॉज अलग अलग हो जाएंगे। और कॉज को आइडेंटिफाई करना है TAT के फर्स्ट पार्ट में, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। सेकेंड पार्ट व्हाट इज करंटली हैपनिंग में, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अवॉइडेंस, एकोमोडेशन, कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, जो भी आप लगाना चाहते हो डिपेंडिंग अपॉन क्या सेटिंग है और क्या कॉज है, यू विल हैव टू राइट दैट। एंड फाइनल आउटकम में, एंड पार्ट में, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो आपका स्टोरी एंड नहीं होगा। आपको आई होप यू आर गेटिंग दैट। सो तीनों में लिख के मुझे भेजना, हम इसे जूम के ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाले मंडे को। तो आप जो है लिख के आप मुझे व्हाट्सअप करना या इसके नीचे लिखना, और आप मुझे
व्हाट्सएप से आप लिंक ले सकते हो मंडे के लिए, या आप इसको टेलीग्राम चैनल से भी, एफ का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप उसको निकाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो दोबारा मैं बता दूं कि एफ का ऑनलाइन कॉम्पोजिट बैच कंसिस्टिंग ऑफ बोथ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड SSB इज़ अवेलेबल फॉर 1 month ड्यूरेशन। ऑनलाइन होगा जूम के ऊपर, एंड इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना तो दिस इज़ द नंबर ऑन विच यू टू रजिस्टर 9090090335, एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। एंड क्लासेस जो है किसी भी मंडे को होता है, अगला बैच जो है किसी भी मंडे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 10th को है, फिर 17 को, 24th को और 31st को आप ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आप बीच में भी ज्वाइन करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज साइक्लिक बैच, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना है, आई शेयर यू द डिटेल्स, राइट। एंड अगर आपने अभी तक एफ.ओ.सी.पी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, पोस्ट योर कमेंट्स, डू शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो को अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ तो उसको ज़रूर लाइक करना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।